Hello guys, welcome to our channel. Today we are discuss the chapter number 12 of class 6th, ratio and proportion. Let's start. Chapter number 12. What is ratio and what is proportion? Let's see. Mathematical number used in comparing two things which are similar to each other in term of a units are ratio. ठीक है, कह रहा जब भी मैथमेटिकल नंबर्स को मैं क्या करूंगा, कंपेयर करूंगा टू थिंग्स को विच आर सिमिलर टू ईच अदर इन द टर्म ऑफ द रेशियो। ठीक है, कभी भी दो चीजों को अगर मेरे को कंपेयर करना है तो उनके लिए उनका क्या होना जरूरी है, यूनिट सेम होनी जरूरी है। अगर उनकी यूनिट्स अगर सेम नहीं है तो मैं इजी वे से उनको कंपेयर नहीं कर सकता। A ratio can be written in a three different ways are, let's see, x divided by y, but read as the ratio of x to y. For example, ratio of 4 to 5 is ratio of 4 to 5 is 4 ratio of 5. ठीक है, let's see. Ram's weight is 40 kg. राम का जो वेट कितना है 40 kgs and the Ali weight is 80 kgs. ठीक है, टू फाइंड आउट द रेशियो ऑफ राम वेट टू द अली वेट। रेशियो निकालना है राम्स वेट टू अलीज वेट। ठीक है, लेट्स सी द वेट ऑफ द राम is 40 and the weight of the Ali is 80. Then cancel out 0, 4 1 and 4 2. Then the ratio of the weight of the Rams and the Ali weight is 1:2. ठीक है, let's see. Comparing things similar to each other is the concept of the ratio. कभी भी दो चीजों को कंपेयर करना एक दूसरे के साथ और कंसेप्ट होता है किसका, रेशियो का। एंड व्हेन टू रेशियो आर सेम, जब कभी भी दो रेशियो सेम होंगी, दे आर सेड टू बी प्रोपोर्शन टू ईच अदर, तो क्या कहा जाएगा, वो दोनों क्या है, एक दूसरे के प्रोपोर्शन है। लेट्स सी, इट रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल इज डबल डॉट एंड इक्वल। ठीक है, लेट्स सी रेशियो। What is golden ratio? Let's see. Two quantities are in golden ratio if their ratio is to be same. अगर उनका रेशियो क्या है, सेम है, as the ratio of their sum to be larger the two quantity and the ratio of sum, the ratio of their sum, यानी जो रेशियो आया उनका सम अगर ज्यादा है उन दो क्वांटिटीज से, तो वो रेशियो कैसा रेशियो होगा, गोल्डन रेशियो होगा। लेट्स सी. If two numbers A and B are the golden ratio, if two numbers A and B are the golden ratio, then A plus B divided by A is equal to A divided by B. ठीक है, it is approximately equal to 1.618. तो उसको क्या बोलेंगे हम, गोल्डन रेशियो बोलेंगे। Let's see the next point is ratio. The ratio is the comparison of a quantity with respect to another quantity. ठीक है, एक क्वांटिटी को दूसरी क्वांटिटी से क्या करना, कंपेयर करना, वो क्या होता है, रेशियो होता है। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय डबल डॉट, इसको डबल डॉट से क्या करते हैं, हम डिनोट करते हैं। ठीक है, लेट्स सी द नेक्स्ट पॉइंट। टू क्वांटिटीज कैन बी कंपेयर्ड ओनली इफ दे आर इन सेम यूनिट। ठीक है, कोई भी दो क्वांटिटी को कंपेयर तब कर सकते तब क्या हो, वो दोनों सेम यूनिट्स में क्या हो, सेम यूनिट में। ठीक है, लेट्स सी द नेक्स्ट पॉइंट इज एग्जांपल। फादर्स एज इज 75 ईयर एंड द डॉटर एज इज 25। जो फादर की एज 75 ईयर है एंड द डॉटर की एज 25। देन द रेशियो टू फादर एज टू द डॉटर, देन द रेशियो टू फादर एज टू द daughter age. Then the age of the father is 75 and age of the daughter is 25. Then we cancel out 25 1 ja and 25 3 ja, that is 75. Then the ratio is 3:1 is the ratio of father's age and the daughter's age. Let's see. The next point is difference between fraction and ratio. Let's see. Ratio with fraction. Some ratios have term that are fraction. कुछ ratios की term किस में होती है, fraction में होती है। Such ratio, ऐसे ratios को हम लिखते हैं ratio with integer amount. Let's see. Ratio are 1
by 2 ratio 1 by 3, then it's all 1 by 2, then ratio 1 by 3, then ये ऊपर आगे क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, then 1 by 2 into 3 by 1, that is 3 by 1, sorry 3 by 2, then the ratio is 3:2. ठीक है, same as 3 by 4 ratio with 2 by 5. Let's see, 3 by 4 ratio with 2 by 5, then it is solved 3 by 4 as it is, 2 by 5 ऊपर आगे क्या हो जाएगा, रिवर्स 5 by 2, then 3 5 is 15 divided by 4 2 is 8, then the ratio is 15:8. ठीक है, let's see the next point. A fraction describe a part of a whole and its denominator represent the total number of the part. कह रहा है a fraction describe a part of a whole number. A fraction है जो describe करता है whole number and its denominator जो उसके denominator है represent the total number of the part. उस total number of the parts के क्या करता है, denominator represent करता है कितने parts हैं. Let's see the next point is example 13 means one part of the 3, 1 by 3. So 1 by 3 means one part of the 3. 3 means the kitna part, one part, that is 1 by 3. Same as a ratio is comparison of two different quantities. ठीक है, एक ratio है जो कि compare करता है two different quantities को. Let's see the next point. Example, in a society 10 people like driving, 10 people जो like करते driving, and the 20 people like swimming, then the total number of the people in society is 10 plus 20, that is 30. Let's see the ratio of the number of the people like driving to the total number of the people. ठीक है, रेशियो निकालना है number of people like driving to total number of people. Let's see number of the people like driving, how many peoples like driving, that is 10, and the total number of the peoples are 30, then 10 divided by 30, then cancel out, then the ratio is 1:3. The ratio of the people, number of people like driving to the number of the people, total number of the people, that is 10:30, as same as the ratio of the number of the people like swimming, how many peoples like swimming, that is 20, and the total number of the people are 30, then cancel out, sorry, to the number of the people like driving, the number of the people like driving, that is 10, then 2:1 is the ratio of people who like swimming and who likes driving. Okay, let's see the next point. Same ratio in a different situation. Ratio can be remain same in different situation. Let's see. Ratio can be remain same in a different situation. Weight of the Joe and the weight of the James, they are kept 50 divided by 100. The ratio is 1:2. And the number of the girls and the number of the boys, that is 1:2. It means both the above ratio are equal. It means दोनों ratio क्या हैं, equal हैं. Then comparing quantities using ratio. Let's see. Quantity can be compared using ratio. For example, Joe worked for 8 hours and Jam worked for 2 hours. जो Joe है वो काम करता है 8 घंटे and the James work 2 hours. Then how many times Joe working hour? Then Joe कितने घंटे काम करता है is of the James work hour. Let's see. रेशियो निकालना है to the work of Joe by work of James, that is 8/2, then we cancel out, that is 4. ठीक है,
Let's see the next point. Therefore, Joe worked 4 times more than the James. इसमें it means जो है जो क्या करता है 4 times ज्यादा वर्क करता है किससे? जेम्स। ठीक है, लेट्स सी द नेक्स्ट पॉइंट। कंपैरिजन ऑफ ए रेशियो। Let us consider a problem statement. To understand the concept of comparison of ratio, statement is an architect state that the building that have the ratio of the span to height more than 1:4 is feasible, and the dimension of the plane of the various building are laid before him. See the table. Read ratio and proportion. Let us find out the span height of the ratio of all building in the smallest form. Let's see. Building A height दे रखी 100 meter and span 60 meter. The ratio is 60 divided by 100. Then we cancel out 3 and 5. Then the ratio is 3:5. And the building B, the span is 60 and the height is 30. Then we cancel out 0, 0, 6, 5, the 30. Then the ratio is 1:5. And the same as building C, span is 100 and the height is 300. Then we cancel out. Then the ratio is 1:3. Compare this with the ratio given by the architect. Let's see for building A. For building A is 3:5 and 1:4. Which one is greater? Let's see. 3:5 and 1:4. Okay, let's we cross multiply. That is 4 3 is 12 and 5 1 is 5. Then which one is greater? 12 is greater than 5. It means 12 is greater than 5. It means 3:5 is greater than 1:4. Hence we can say ratio 3:4 is greater than 1:4. According to problem statement, this satisfies the criteria as per architect. Therefore building A is a feasible. So building A क्या feasible है. Let's see the next point. Similarly, calculating for other buildings, building B, we find out 1/5 is less than 1/4. 1/5 and 1/4 को अगर compare कर दो, let's we cross multiply. That is 4 into 5, and it will greater. It means 1/5 क्या कम है किससे? 1/4 से. And for the building C, 1/3 is greater than 1/4. Hence, building A and C are the feasible when building B is not feasible. ठीक है, let's see. The next point is equivalent ratio. Let's see what is equivalent ratio. Equivalent ratio. The ratio are in equal form. Then the ratio is called equivalent ratio. When the given ratio are equal, then these ratio are called equivalent ratio. जब ratio क्या हो equal में हो, then the ratio is called equivalent ratio. For example, 2/3 is equal to 4/6. 2/3 means 2:3. Then we cancel out 2 2 is 4 and 2 3 is 6. Then the ratio is 2:3. It means 2:3 and 2:3 are equal. Then these ratio are called in equivalent ratio. Let's see. Equivalent ratio can be obtained by multiplying and dividing the numerator and the denominator by the same number. ठीक है, तो कह रहा है अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मैं अगर सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो मेरे को क्या निकल आएगा? इक्विवेलेंट रेशियो निकल आएगा. लेट्स सी 1/2. देन मेरे को 1/2 के अगर इक्विवेलेंट रेशियो निकालने तो मैं जिस नंबर से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करता हूं उसी नंबर से न्यूमरेटर को डिवाइड कर देता हूं. तो इट मींस 1 into 2, that is 2, and 2 2 is 4. It means 2/4 and 1/2 is the equivalent ratio. ठीक है, सेम एज रेशियो 10/30 को अगर मैं डिवाइड कर देता हूं 10 से तो 1 इधर 3, देन 1:3 is equivalent to the 10:30. सेम एज 11/33 को अगर मैं 11 से डिवाइड कर देता हूं तो 11 1 जा 11 3 जा, इट मींस 11:3 is equivalent to the 1:3. ठीक है, सेम एज द नेक्स्ट पॉइंट इज unitary method. Unitary method is number of the pens, that is 24,
then the value of cost is 60, then find the value of the cost of the 32 pence. Let's see. 24 pence cost is 600, then 1 pen cost is 600 divided by 24, then we cancel out 6 4 ja and 6 10 ja, that is 100 by 4, then we cancel out, that is 25. It means 1 pen की जो cost होगी क्या होगी, वो 25 होगी. Then find the cost of 32 pence. If 1 pence equal to 25, then the 32 pence are 25 into 32. Let's multiply 25 into 32. 2 5 ja 10, 0, 1 carry, 2 2 ja 4 or 1 5, then 3 5 ja 15, 5, 1 carry, 3 2 ja 6 or 1 7, that is 800. Then the cost of 32 pence is 800 rupees. ठीक है. Same as the point is the method in which first we find the value of the 1 unit, जिसमें हम पहले 1 unit की वैल्यू निकाल लेंगे, and the value then the value of required number, तो required number की वैल्यू निकाल लेंगे, तो उस मेथड को बोलेंगे यूनिटरी मेथड. Let's see. Cost of the two shirts cost is 200 rupees. And what will the cost of the 5 shirts? तो 5 शर्ट की cost कुछ क्या होगी, तो 2 shirt cost is 200 rupees. Then the 1 shirt cost is 200 divided by 2. Then we cancel out, that is 100. Then the cost of the 1 shirt is 100 rupees. Then find the cost of the 5 shirts. Then the cost of the 5 shirts is, if the cost of the 1 shirt is 100, then the cost of the 5 shirt is 5 into 100, that is 500 rupees is the cost of the 5 shirts. ठीक है, तो इस मेथड को हम बोलेंगे यूनिटरी मेथड. Let's see. Cost of these 2 shirts दे रखा है 200, then the cost of the 1 shirt is 200 divided by 2, that is 100. Then the cost of the 1 shirt is 100. Then the cost of the 5 shirt, that is 100 into 5, that is 500. ठीक है. Let's see. Proportion. If 2 ratios are equal, then they are said to be proportion. तब कभी भी 2 रेशियो क्या हो, इक्वल हो, तो रेशियो क्या बोली जाएंगी, प्रोपोर्शन बोले जाएंगे. लेट्स सी द सिंबल ऑफ द प्रोपोर्शन इज डबल रेशियो वाला एंड इक्वल टू. ठीक है, इज यूज्ड टू इक्वलेट द 2 रेशियो. लेट्स सी द रेशियो ऑफ 2:3 and 6:9 are proportion because if we cancel out 3 2 is 6 and 3 3 is 9, then the 2/3 ratio is equal to this ratio. It means this ratio are equal. Then the symbol of the proportion is this, yeah, maybe this. ठीक है. Let's see. The unitary method is a method in which you find the value of a 1 unit, जिसमें मैं 1 unit की value find out करता हूँ, then the value of the required number of the unit. What can unit and the values be? Let's see. Suppose you go to the market to purchase 6 apple. ठीक है, तो मार्केट की तरफ गया मैं, तो वहां से मैंने कितनी एप्पल खरीदी, 6 एप्पल खरीदी. And the shopkeeper tell you that he is selling 10 apple for the 100 rupees. ठीक है, then 10 apples, जो 10 apples की cost है वो कितने रुपीज है, 100 rupees cost है. And the apples are the unit and the cost of the apple is the value. While solving a problem, use the unitary method. It is important to recognize the unit and the value. Let's see. 10 apples cost is 100 rupees, and 1 apple cost is 100 divided by 10, that is 10 rupees. It means 1 apple cost is 10 rupees. Then how many apples we purchase? 6 apple. Then 1 apple cost is 10 rupees, then the 6 apple cost is 10 into 6, that is 60 rupees. ठीक है. Let's see. For simplification, always write the things to be calculated on a right side and the things known to be
लेफ्ट साइड, ठीक है, जो निकालनी है वो थिंग्स तो लेफ्ट साइड लिखेंगे, जो चीज दे रखी है वो राइट साइड लिखेंगे। इन द अबव प्रॉब्लम वी नो दैट द अमाउंट ऑफ द नंबर टू एप्पल्स एंड द वैल्यू ऑफ द एप्पल्स इज अननोन, ठीक है। Amount of the number of the apples, amount of the number of the apple and the value of the apple is unknown. It should be noted the concept of the ratio and the proportion it used to problem relate to this method. Let's see. Example of unitary method. Consider another example. A car runs 150 किलोमीटर on 50 पेट्रोल, ठीक है। एक कार है जो कि 50 लीटर्स पेट्रोल्स में कितना रन करती है, 150 किलोमीटर रन करती है, ठीक है। Then how many kilometer will it run in 10 लीटर? तो 10 लीटर्स में पूछा कितने किलोमीटर रन करेगी, तो गिवन दे रखा है 10 लीटर्स में अगर पूछा है तो लीटर्स को लिखूंगा मैं लेफ्ट हैंड साइड और जो चीज दे रखी है लिखूंगा राइट हैंड साइड। लेट्स सी। 15 लीटर्स में वो ट्रेवल करती है 150 किलोमीटर। देन 1 लीटर पेट्रोल में कितना ट्रेवल करेगी, 150 डिवाइड बाय 15, दैट कैंसिल आउट, दैट इज 10 किलोमीटर। It means the car travel 1 liter petrol with 1 liter petrol is 10 kilometer. Then the car travel how much distance in 10 liter? अगर वो 1 लीटर में 10 किलोमीटर चल रही है तो 10 लीटर में कितना चलेगी? That is 10 into 10, that is 100 kilometer. See, it cover in 10 liter petrol. ठीक है? Let's see. In the above question, try and identify units and values. किलोमीटर एक इक्वल टू अननोन यूनिट, तो किलोमीटर अननोन यूनिट है तो मैं उसको कहा लिखूंगा लेफ्ट साइड में। एंड नंबर ऑफ द लीटर फ्यूल दैट इज अननोन, तो उसको लिखूंगा लेफ्ट साइड में। नाउ वी ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम। 15 लीटर पेट्रोल कितना डिस्टेंस कवर करती है, 150 किलोमीटर। देन 1 लीटर पेट्रोल में कितना कवर करेगी, 150 डिवाइड बाय 50, देन वी कैंसिल आउट, दैट इज 10 किलोमीटर। इट मींस 1 लीटर पेट्रोल में कितना ट्रेवल करती है, 10 किलोमीटर ट्रेवल करती है। देन 10 लीटर पेट्रोल में कितना ट्रेवल करेगी, अगर 1 लीटर पेट्रोल में 10 ट्रेवल करती है देन 10 लीटर में 10 into 10, दैट इज 100 किलोमीटर ट्रेवल ऑन 10 लीटर फ्यूल। लेट्स सी द नेक्स्ट पॉइंट इज, if we need to find the ratio of one quantity with respect to another quantity, एक क्वांटिटी से दूसरी क्वांटिटी का रेशियो निकालना है, then we need to use the unitary method। तो हमको किसका यूज करना पड़ेगा, यूनिटरी मेथड का। Let us understand with the help of example. Let's see. Example. Income of a अमीर is, जो अमीर की इनकम है, income of अमीर is 12,000 per month and that of the अमित, जो अमित की इनकम है पर annual 1,91,520. If the monthly expenditure of each of them 9,960, अगर वो हर एक जो कितना मंथली खर्च कर देता है, 9,960 रुपीज जो खर्च कर देता है, मंथली खर्च कर देता है, देन फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सेविंग। लेट्स सी। अमीर जो है एक महीने में कितना पैसा कमाता है, 12,000 रुपए, और जो अमित है वो पूरे साल पैसे कमाता है इतना, पूरा साल पैसा कमाता है 1,91,520। देन ये पूरा साल मतलब 12 मंथ, 12 मंथ जो पैसा कमाता है कितना कमाता है, 19,520। एंड 12 मंथ की इनकम इतनी है, देन 1 मंथ की इनकम क्या होगी, लेट्स सी। 12 मंथ की इनकम इतनी है, देन 1 मंथ की इनकम क्या होगी, डिवाइड बाय 12। देन वी कैंसिल आउट, कैंसिल आउट करने के बाद जो रुपीज आएंगे, 1 मंथ में कितने पैसे कमाता है, 15,960 रुपीज जो 1 मंथ में कमाता है, ठीक है। एंड अमीर जो है 1 मंथ में कमाता है 12,000 रुपए। एंड अमीर और जो अमित है वो दोनों जो है कितना पैसा खर्च कर देते हैं पर मंथ, 9,960 रुपीज जो पैसा खर्च कर देते हैं। सेम एज 9,960 रुपीज जो खर्च करेगा, देन कितने सेविंग बचेंगे इसके पास, लेट्स वी सबट्रैक्ट, दैट इज 6,000। एंड द अमीर अगर 12,000 रुपये कमाता है
और 9,960 अगर खर्च कर देगा, देन उसके पास कितने पैसे बचेंगे? लेट्स सब्ट्रैक्ट। दैट इज 2040 रुपीज। ठीक है, देन फाइंड द रेशियो। तो रेशियो फाइंड आउट करना बाय द सेविंग्स मनी का। देन द अमीर जो सेविंग करता है 2040 की सेविंग करता है, एंड द अमित सेविंग करता है 6000 से। द रेशियो इज कैंसिल आउट, देन 2, देन फिर 2 पे 30, देन वी कैंसिल आउट 2, 51, देन कैंसिल आउट 150, देन फिर 3 1 जा, देन 2 कैरी 3 7 जा, देन 3 5 जा 0, देन द रेशियो इज 17:50। ठीक है, लेट्स सी। इनकम ऑफ ए अमीर इज 12,000 पर मंथ। ठीक है, एंड द डेट ऑफ द अमित इज 1,91,520 per annum. If the monthly expenditure of the each of them is, हर एक जो है मंथ में कितना पैसा खर्च करता है? 9,960 रुपीज खर्च कर देता है पर मंथ। एंड फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सेविंग। तो सेविंग की रेशियो निकालनी क्या होगी? लेट्स सी सॉल्यूशन। सेविंग ऑफ द अमीर पर मंथ। अब अमीर जो है पर मंथ कितने पैसे कमाता है? 12,000 रुपए कमाता है, और कितने खर्च कर देता है? 9,960 रुपीज वो खर्च कर देता है। इट मीन्स 12,000 माइनस 996, देन बचा 2,040, एंड 2,040 रुपीज जो क्या करता है? सेव करता है। लेट्स सी दैट नेक्स्ट पॉइंट इज इन 12 मंथ अमित अर्न 1,91,520, that is monthly income. Then we find out the per month income is 12 मंथ में कितना कमाता है? इतना कमाता है। देन 1 मंथ में कितना कमाएगा? 19,1520 डिवाइडेड बाय 12, that is 15,960। इट मीन्स 1 मंथ में वो कितने पैसे कमाएगा? 15,960 रुपीज। अब वो पर मंथ में कितना पैसा खर्च करता है? 9,960 रुपीज करता है। देन सेव कितना करेगा? पैसे 15,960 रुपये अगर पूरे मंथ में कमाता है। देन ही स्पेंड 9,960 रुपीज इन मंथ, देन ही सेव्स 6,000 rupees in a month. Then the ratio of the saving of the Amir and Amit is this. Then we cancel out. The ratio is 17:50. Let's see the next point. Types of a unitary method. In the unitary method, the value of a unit quantity is calculated first to calculate the value of the other unit. ठीक है, करें यूनिटरी मेथड, द वैल्यू ऑफ ए यूनिट क्वांटिटी को क्या करेंगे? पहले कैलकुलेट करेंगे, then calculate the value to the other unit. It has two type. One is direct variation and second is inverse variation. Let's we study about the direct variation is. In a direct variation, increase or decrease in a one quantity will cause an increase or decrease in a another quantity. ठीक है, कि अगर एक क्वांटिटी में क्या हो? डिक्रीज हो रहा है, तो दूसरी में भी क्या होगा? डिक्रीज ही होगा। अगर एक क्वांटिटी में इंक्रीज हो रहा है, देन दूसरी में भी क्या होगा? इंक्रीज ही होगा। तो उसको बोलेंगे हम डायरेक्ट। क्या बोलेंगे उसको? डायरेक्ट वेरिएशन। लेट्स सी। इट मीन्स मैं मान लेता हूं अगर वन डे की अगर इनकम 700 रुपीज है, देन 7 डेज की इनकम क्या होगी? अगर वन डे की इनकम 700 रुपीज है, देन 7 डेज की क्या होगी? 4900 होगी। इट मीन्स अगर डेज बढ़ रहे हैं तो क्या है? इनकम भी बढ़ रही है। इट मीन्स अगर एक चीज बढ़ रही है, देन एज कंपेयर टू उसके कंपेयर में सेकंड भी बढ़ रही है, तो इट मीन्स वो क्या है? एक डायरेक्ट वेरिएशन है। ठीक है, अगर एक चीज घट रही है तो इट मीन्स उसकी कंपेयर में दूसरी चीज भी अगर घट रही है, तो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड डायरेक्ट वेरिएशन। लेट्स सी, मैं मान लेता हूं एग्जांपल। लेट्स सी अगर 2 मिनट्स में 50 रुपीज का अगर लॉस हो रहा है, अगर 2 मिनट्स में 50 रुपीज का लॉस हो रहा है, देन 10 मिनट्स में कितने रुपीज का लॉस होगा?
₹50 का लॉस हो रहा है, देन 10 मिनट्स में कितना होगा? 2 मिनट में 50 का लॉस हो रहा है, देन 10 मिनट्स में कितना होगा? ₹250 का लॉस होगा। इट मीन्स अगर कोई वैल्यू, लेट्स सी, ये वैल्यू क्या है? बढ़ रही है, और इधर वैल्यू क्या हो रही है? घट रही है। इट मीन्स ये क्या? डायरेक्ट वेरिएशन नहीं है, ठीक है। ये क्या होगी? इनवर्स वेरिएशन। लेट्स सी, लेट्स स्टडी इन अ डायरेक्ट वेरिएशन, इंक्रीज और डिक्रीज इन वन क्वांटिटी विल कॉज एन इंक्रीज और डिक्रीज इन अदर क्वांटिटी। अगर एक क्वांटिटी बढ़ रही है और उसके कंपेयर में दूसरी क्वांटिटी भी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। इट मीन्स इट इज ए डायरेक्ट वेरिएशन। अगर एक कंपेयर में एक जो वैरायटी है वो क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है, एंड दूसरे कंपेयर में उसकी जो क्वांटिटी वो भी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है, देन इट इज आल्सो ए डायरेक्ट वेरिएशन। फॉर इंस्टेंट, एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ द गुड्स विल कम कॉस्ट मोर प्राइस, ठीक है। लेट्स सी, also the amount of the work done by a single man will be less than the amount of the work done by the group of men. Hence we increase the number of the men, then the work will be increased. Let's see, अगर किसी काम को एक बंदा कोई काम करे, ठीक है, ए सिंगल मैन विल बी लेस अमाउंट, तो एक बंदा अगर किसी काम को करता है तो उसकी इनकम कम होगी एज कंपेयर टू अगर उसी काम को मिलकर ज्यादा बंदे करते हैं। किसी काम को मिलकर ज्यादा बंदे करते हैं तो इनकम भी क्या होगी? ज्यादा होगी, ठीक है। इट मीन्स अगर क्या है, अगर वर्कर बढ़ रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है? सैलरी भी बढ़ रही है। इट मीन्स अगर कोई चीज बढ़ रही है एज कंपेयर टू दूसरी भी बढ़ रही है, तो इट मीन्स इट इज ए डायरेक्ट वेरिएशन। देन इज इनवर्स वेरिएशन, whenever the product of the corresponding values of two quantity is constant, ठीक है। जब कभी भी दो वैल्यूज का प्रोडक्ट क्या हो? कांस्टेंट हो, then the value is inversely proportional to each other, ठीक है। Let's see, it is a inverse of a direct variation. If we increase a quantity, then the value of the another quantity gets decreased, ठीक है। अगर मैं किसी एक की वैल्यू को इंक्रीज कर रहा हूं तो एज कंपेयर टू दूसरी वैल्यू क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी इंक्रीज द स्पीड, अगर मैं क्या कर रहा हूँ? स्पीड को इंक्रीज कर रहा हूँ। अगर मेरे को कोई डिस्टेंस कवर करनी है, अगर मैं स्पीड को इंक्रीज कर रहा हूँ तो मेरे पे, अगर बाई चांस मान लेता हूँ, अगर मैंने 100 मीटर डिस्टेंस कवर करनी है, ठीक है, तो पहली स्पीड मेरी कुछ है तो मैं टाइम ले रहा हूँ कुछ, लेकिन अगर मैंने स्पीड इंक्रीज कर दी तो टाइम क्या लगेगा? कम लगेगा। इट मीन्स अगर स्पीड इंक्रीज हो रही है देन टाइम क्या लग रहा है? कम लग रहा है। इट मीन्स अगर एक वैल्यू बढ़ रही है और दूसरी क्या वैल्यू है? घट रही है, या फिर एक वैल्यू घट रही है और दूसरी वैल्यू बढ़ रही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? इनवर्स प्रोपोर्शन बोलेंगे या फिर इनवर्स वेरिएशन बोलेंगे, ठीक है। लेट्स सी द नेक्स्ट पॉइंट इज application of a unitary method. The unitary method finds its practical application everywhere, ranging from problems of speed, distance, time to the problem related to calculate the cost of material. Let's see. The method is used for evaluating the price of the good, and it is used to find the time taken by a vehicle. ये यूज किया जाता है कि कितना व्हीकल जो टाइम लेगा और ए पर्सन टू कवर इट सम डिस्टेंस इन एन आवर। द नेक्स्ट इज इट इज यूज्ड इन बिजनेस फॉर डिटरमाइन द प्रॉफिट एंड लॉस के लिए भी क्या इसको बिजनेस में यूज किया जाता है। लेट्स सी द नेक्स्ट पॉइंट, यूजेस ऑफ ए रेशियो एंड प्रोपोर्शन। फॉर एग्जांपल, सपोज ए मैन है ट्रेवल करता है 80 किलोमीटर इन 2 आवर्स, ठीक है। हाउ मच डिस्टेंस विल इट टेक इन ट्रेवल इन 40 किलोमीटर, 40 किलोमीटर में कितना टाइम लेगा? लेट्स सी, अगर 80 किलोमीटर चलता हो 2 आवर्स में, लेट्स सी 1 किलोमीटर चलेगा हो 2 डिवाइड बाय 80 आवर, देन वी फाइंड आउट अगर 1 किलोमीटर में इतना टाइम ले रहा है तो देन 40 किलोमीटर में इसमें कितना टाइम लेगा हो? 280 इंटू 40, देन वी कैंसिल आउट 2 2 जा 2 1 जा, देन 40 किलोमीटर कितने आवर में ट्रैवल करेगा? 1 आवर्स में ट्रैवल, ठीक है। लेट्स सी, solution is if x is required time then the proportion is, suppose a man travel 80 kilometers in hour, ठीक है। तो किलोमीटर्स और टाइम की दे रखी है किलोमीटर एंड डिस्टेंस, और अगर टाइम की बात दे रखी है, ठीक है। लेट्स सी, 80 किलोमीटर इंटू 2 प्रोपोर्शन विद, यानी 80 डिवाइड बाय 2 इक्वल विद 40 डिवाइड बाय x। ये फॉर्मूला किसका है? डायरेक्ट इनवर्स का। डायरेक्ट इनवर्स का मतलब कि अगर मैं डिस्टेंस को इंक्रीज कर देता हूं तो टाइम भी क्या होगा? इंक्रीज होगा।
अगर डिस्टेंस बढ़ रही है तो उस डिस्टेंस को कवर करने में टाइम भी तो ज्यादा लगेगा ना। या फिर मैं बोलूं किसी डिस्टेंस को कवर करने में टाइम ज्यादा लग रहा है, इट मीन्स वो डिस्टेंस क्या थी, ज्यादा थी। तो इट मीन्स अगर एक वैल्यू ज्यादा है तो दूसरी वैल्यू भी क्या है, ज्यादा है। इट मीन्स इट इज ए डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन के लिए यूज करेंगे 80 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 40 डिवाइड बाई x। ठीक है, देन वी क्रॉस मल्टीप्लाई, that is 80 into x equal to 2 into 40, that is 80. Then the value of x is 80 divided by 80, then we cancel out, that is 1. ठीक है, then the man takes 1 hour to complete 40 kilometer. Let's see, the next point is ratio and proportion in maths. The definition of ratio and proportion is described here in the section. Both concepts are an important part of mathematics. In a real life also, you may find a lot of example such as the rate of the speed. Rate of speed equal to distance upon time, and the price is rupees per meter of a material, where the concept of the ratio is highlighted. Let's see. Proportion is an equation, एक ऐसी equation है that defines, जो बताती है that the two given ratio are equivalent to each other, यानी दो given ratio हैं जो क्या होंगे, एक दूसरे के equivalent होंगे। तो ये कौन शो करेगा, proportion शो करेगा। For example, the time taken by a train to cover 100 km per hour is equal to a time a train travel 100 km to 1 hour is time taken by it to cover a distance of 500 km with 5 hours. ठीक है, then the both are in a proportion, then it is called proportion. Let's see the next point. Ratio meaning. What is ratio meaning? In a certain situation, the comparison of the two quantities by the method of division is very efficient. ठीक है, तो डिवीजन के मेथड से किसी भी क्वांटिटी को कंपेयर करना, when we say that the comparison or simplified form of the two quantities of the same kind is referred to as a ratio. Let's see, the relation give us how many times us one quantity is equal to the another quantity. तो रिलेशन बताता है कि एक क्वांटिटी दूसरे क्वांटिटी के कितने टाइम्स है। इन ए सिंपल वर्ड, द रेशियो इज द नंबर, एक रेशियो जो नंबर है, दैट कैन बी यूज होता है किसके लिए, टू एक्सप्रेस वन क्वांटिटी एज ए फ्रैक्शन टू द अनदर वन। एक क्वांटिटी को दूसरे क्वांटिटी को फ्रैक्शन में लाने के लिए किसका यूज होता है, रेशियो का यूज होता है। लेट्स सी द नेक्स्ट पॉइंट, द टू नंबर्स इन ए रेशियो कैन ओनली बी कंपेयर, टू नंबर जब भी रेशियो में होंगे तो उनका कंपेयर सिर्फ तब किया जा सकता है तब उनकी क्या होंगी, यूनिट सेम होंगे। विदाउट द सेम यूनिट द क्वांटिटी आर डजंट कंपेयर, तो विदाउट अगर सेम यूनिट नहीं है तो किसी भी क्वांटिटी को हम कंपेयर नहीं कर सकते। लेट्स सी, वी मेक यूज ऑफ रेशियो टू कंपेयर टू थिंग्स, तो टू थिंग्स को कंपेयर करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, रेशियो का यूज करते हैं। द साइन फॉर डिनोटेड इज, द साइन जो यूज होगा रेशियो का वो ये होगा। ठीक है, लेट्स सी द नेक्स्ट पॉइंट, ए रेशियो कैन बी रिटन एज अ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन में मैं किसी रेशियो को लिख सकता हूँ 2 डिवाइड बाई 5, इट मीन्स 2/5। ठीक है, तो रेशियो को मैं फ्रैक्शन की फॉर्म में भी लिख सकता हूँ। वी हैपन टू सी वेरियस कंपैरिजन और से रेशियो इन आवर डेली लाइफ। लेट्स सी, हेंस द रेशियो कैन बी रिप्रेजेंटेड इन 3 डिफरेंट फॉर्म्स सच एज proportion. Proportion is an equation that define that the two given ratio are equivalent to each other. It means two given ratio क्या होंगे, equivalent होंगे एक दूसरे के, then it show the proportion. In other words, the proportion state the quantity equality of the two fraction or the ratio. जो fraction है वो show करता है equality of two factor and the ratio. In proportion, if two sets of the given number are increasing or decreasing the same ratio, then the ratio are said to be directly proportional. ठीक है, कि अगर कोई वैल्यू बढ़ रही है एज कंपेयर टू उसकी दूसरी वैल्यू भी बढ़ रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शन। ठीक है, बट अगर कोई वैल्यू घट रही है और उसके साथ साथ अगर दूसरी वैल्यू भी अगर कोई घट रही है तो वो भी क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा। लेट्स सी, फॉर एग्जांपल, द टाइम टेकन बाय ट्रेन टू कवर 100 किलोमीटर।
ठीक है। तो 100 किलोमीटर ट्रेवल करने के लिए कितना टाइम ले रही हो पर आवर इज इक्वल टू टाइम टेकन बाय इट कवर डिस्टेंस ऑफ 500 किलोमीटर फॉर 5 आवर सच दैट, यानी 100 किलोमीटर के लिए कितना टाइम ले रही है 1 आवर ले रही है, और 500 किलोमीटर के लिए टाइम ले रही है 5 आवर ले रही है। इट मीन्स ratio and the proportion are said to be faces of the same coin. When two ratio are equal in value, अगर दो रेशियो क्या है इक्वल इन वैल्यू में, तो हम उसको proportion बोल सकते हैं। एंड इट इन सिंपल वर्ड इट कंपेयर टू रेशियो proportion are directly symbol is this। ठीक है। Let's see the next point is the proportion can be classified in the following categories such as direct proportion, inverse proportion and continued proportion। What is direct proportion? The direct proportion describes the relation between the two quantity। दो क्वांटिटी के बीच में रिलेशन अगर कोई शो करता है, इन विच जिसमें द डिक्रीज इन वन क्वांटिटी, अगर वन क्वांटिटी क्या हो रही है डिक्रीज हो रही है, एंड देयर इज एन इंक्रीज इन अदर क्वांटिटी। तो वन क्वांटिटी अगर डिक्रीज हो रही है तो दूसरी क्वांटिटी भी अगर इंक्रीज होगी तो उसको क्या बोलेंगे डायरेक्ट प्रोपोर्शन। या फिर वन क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है तो उसके कंपेयर में अगर दूसरी क्वांटिटी भी क्या हो रही है डिक्रीज हो रही है, इट मींस दैट इज ए डायरेक्ट प्रोपोर्शन। लेट्स सी डिस्टेंस एंड स्पीड की अगर मैं बात करूं, ठीक है। अगर डिस्टेंस किसी ऑब्जेक्ट कोई ऑब्जेक्ट को डिस्टेंस ट्रेवल करनी है, तो अगर मैं उसकी डिस्टेंस को बढ़ा देता हूं तो इट मींस क्या होगा डिस्टेंस और टाइम की बात कर लेता हूं। अगर मैंने किसी ऑब्जेक्ट की अगर मैंने डिस्टेंस को बढ़ा दिया, उसको डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल करनी है, तो इट मींस उसको टाइम भी क्या लगेगा ज्यादा लगेगा। सेम एज अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को कम कर देता हूं, और डिस्टेंस को अगर मैं कम कर देता हूं तो इट मींस डिस्टेंस अगर कम होगी तो उस डिस्टेंस को कवर करने में टाइम भी तो क्या लगेगा कम लगेगा। इट मींस अगर मैंने किसी की वैल्यू इंक्रीज करी है देन दूसरी क्वांटिटी की वैल्यू क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है, या फिर किसी वैल्यू डिक्रीज करी है देन दूसरी क्वांटिटी की वैल्यू क्या हो रही है डिक्रीज हो रही है। इट मींस द रिलेशनशिप बिटवीन द टू क्वांटिटी इन विच the increase in one quantity and there is an increase in other quantity also। Similarly, if one quantity is decreased and the other quantity is also decreased, hence the relationship is called direct proportion। ठीक है। Let's see the next point is it is written as with a and b। मान लेता हूं क्या direct proportion, then it is written with a directly proportional to b। Let's see the inverse proportion। Inverse proportion describe the relationship between two quantities in which अगर एक इंक्रीज हो रही है देन दूसरी क्या होगी डिक्रीज होगी, एंड वन अगर डिक्रीज हो रही है देन दूसरी क्या होगी इंक्रीज होगी। लेट्स सी अगर किसी काम को करने में एक मैन 10 दिन ले रहा है, ठीक है। 10 दिन अगर किसी काम को करने में एक बंदा ले रहा है तो मैं क्या करूं अगर वहां पे मैं मजदूर बढ़ा दूं, ठीक है, वर्कर अगर ज्यादा हो जाए, एक वर्कर किसी काम को 10 दिन में करता है। लेट्स सी मैंने क्या किया वर्कर को क्या कर दिया इंक्रीज कर दिया। अगर मैं एक वर्कर की जगह ज्यादा वर्कर का अगर यूज करता हूं देन वो काम क्या होगा जल्दी फिनिश हो जाएगा। इट मींस मैंने वर्कर इंक्रीज किए देन जो डेज ऑफ वर्क काम करने की क्या होगी डिक्रीज होगी। इट मींस अगर एक वैल्यू इंक्रीज हो रही है दूसरी क्या हो रही है डिक्रीज हो रही है, इट मींस वो एक दूसरे क्या है इनवर्स प्रोपोर्शन है। लेट्स सी व्हाट इज इनवर्स प्रोपोर्शन। द इनवर्स प्रोपोर्शन डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन टू क्वांटिटीज इन विच एन इंक्रीज इन वन क्वांटिटी lead to decrease in another quantity। it means अगर एक क्वांटिटी बढ़ रही है दूसरी क्या हो रही है घट रही है। सिमिलरली इफ वन इज डिक्रीज अगर एक घट रही है देन क्वांटिटी क्या हो रही है बढ़ रही है। तो ऐसी क्वांटिटी क्या बोलेंगे इनवर्स प्रोपोर्शन बोलेंगे। इफ a and b are the two inverse proportion then it is written to be a direct inversely proportional to b। ठीक है। Let's see the next point is continued proportion। What is continued proportion? Consider two ratio to be a ratio b and c ratio d। Then in order to find the continued proportion for the two given ratio term, we convert the means to single term
divided by number, this would in general be LCM of the wing. Let's see. The LCM of B and C will be BC, and thus the multiply the 2 ratio by C and the second ratio by B. We have find ratio CA and BC. Now the second ratio is BC and CD. ठीक है, तो thus we continued in written form CA, BC and BD. ठीक है, let's see. रेशियो में हमने क्या क्या कवर किया. लेट्स स्टडी अबाउट द रेशियो एंड प्रपोर्शन. रेशियो एंड प्रपोर्शन मैंने पढ़ा इक्वेशन स्टार्टिंग टू रेशियोज आर इक्वल. अगर किसी रेशियो के दोनों रेशियो इक्वल है इट मींस हम क्या बोलेंगे, इसको प्रोपोर्शन बोलेंगे. इट मींस प्रोडक्ट ऑफ द एक्सट्रीम्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द मीन्स. लेट्स सी द नेक्स्ट पॉइंट इज कंपेयरिंग साइज ऑफ द टू क्वांटिटीज. ठीक है, रेशियो by finding difference. Sachin is 8 year and his sister is 4 year, then difference is 8 minus 4, that is 4. तो क्या कर सकता हूं मैं, डिफरेंस भी निकाल सकता हूं by using division. Sachin age is 8 and the cancel out with 2. It means the age of the Sachin is twice his sister. ठीक है, तो इस तरीके से मैं क्या कर सकता हूं, by division ये भी निकाल सकता हूं. Let's see the next point. Unitary method. फाइंड द वैल्यू ऑफ ए वन यूनिट. एक यूनिट की वैल्यू निकालने के बाद देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ द यूनिट. देन फाइंड आउट करो यूनिट रिक्वायर्ड नंबर ऑफ यूनिट की अगर मैं वैल्यू निकालता हूं तो ऐसे मेथड को हम क्या बोलते हैं, यूनिटरी मेथड बोलते हैं. देन द पॉइंट इज इक्विवेलेंट रेशियो. इक्विवेलेंट रेशियो इट मींस द रेशियो which have the number which have equal ratio. For example अगर 2/3 के मेरे को इक्विवेलेंट रेशियो निकालना है तो क्या करूंगा मैं, तो जिस नंबर से मेरे को नोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है अगर उसी नंबर से मैं डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई कर देता हूं then the given number is equivalent to the फर्स्ट नंबर. एंड 2/3 का अगर मैं इक्विवेलेंट रेशियो निकालना है तो मैं क्या करूंगा, जिस नंबर से मेरे को मल्टीप्लाई करना है उसी नंबर से डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करूंगा. Let's see 2 to the 4 and 3 to the 6. It means 4/6 is equivalent ratio to the 2:3. ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द रेशियो एंड प्रोपोर्शन. तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे.